اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا۔ محترم ناظرین و ناظرات، المہدی ٹی وی کے پروگرام برکات اسم اعظم کی 47ویں قسط کے ساتھ سخاوت حسین صدرالوی حاضر خدمت ہے اور آپ تمام حضرات و خواتین کو سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہے۔ ہمارا یہ پروگرام ہر ٹیوزڈے کو 7 بجے ٹھیک نشر ہوتا ہے لائیو، مگر آج ذرا سی ٹیکنیکلی خرابیوں کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضری میں آدھا گھنٹہ دیر ہو گئی، جس پر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اور آج ہمارا پروگرام درس نہج البلاغہ بھی 8 بجے نہیں ہو پائے گا، آج صرف ہم یہی پروگرام کریں گے۔ آپ حضرات و خواتین اگر کال کرنا چاہیں تو 718-675-6987 پر کال کر لیں۔ آج کا پروگرام شروع کر رہا ہوں۔ عموماً ہمارا فارمیٹ یہ ہے کہ ہفتے بھر میں جو برکات اسم اعظم سامنے آئی ہوتی ہیں ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، صرف انکریجمنٹ کے لیے، تشویق کے لیے، لوگوں کو ذکر الہی کا شوق دلانے کے لیے، ورنہ کبھی بھی اپنی ذاتی تشہیر مقصود نہیں رہی اور نہ ہی سیلف پروموشن کو زندگی میں کبھی اڈاپٹ کیا۔ جتنے پروگرام آج تک کیے ہیں قربتاً اللہ کیے ہیں، اور آئندہ بھی جو پروگرام ہوں گے خالصتاً لوجہ اللہ ہوں گے۔ اس گزشتہ ہفتے بھر میں برکات اسم اعظم کی 46ویں اور 47ویں قسط کے درمیان جو وقت گزرا، اس دوران مجھے کل ایک ایس ایم ایس آیا ہے۔ اس ایس ایم ایس کو میں بغیر نام کے پڑھ رہا ہوں تاکہ بھائی بہنوں کو احساس ہو کہ اسم اعظم کی برکات کتنی ظاہر ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ میسج ہے جو میں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو مجھے کل ملا ہے۔ اس میسج میں انکریجمنٹ ہے اور ذکر ہے اس ایک ایسے وظیفے کا اور اس کے اثر کا، جس کا اثر لگ بھگ 72 گھنٹے میں ظاہر ہوا ہے۔ دیکھیے، ایک بیٹی نے ایک باپ کو یہ میسج کیا ہے۔ اس بیٹی کے باپ نے مجھ سے رابطہ کیا۔ وہ لکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب، I would like to share with you the message I just received from my daughter۔ اب یہ ڈاکٹر کا میسج ہے۔ I feel really good today. I feel so happy, relaxed and free. Thank you so much, Papa. This is all your efforts. I love you so much. You have given me a new life. I am so blessed to be your daughter. I haven't felt this good in such a long time. Thank you for being the best father. وہ بھائی لکھتے ہیں، Thank you so much, Dr. Saheb. I believe your efforts have started showing results.
I do not know how to thank you. जज़ाकल्लाहु खैरा. یہ ایک میسیج ہے جو کل آیا ہے. اس میسیج نے مجھے بڑا ہی خوش کیا ہے کہ ایک بیٹی جو از حد پریشان تھی، آلموسٹ کچھ غیبی طاقتوں نے اسے جکڑ رکھا تھا، وہ طاقتیں اس کو اذیت پہنچاتی تھی، تنگ کرتی تھی، اور ان کی تنگی کی وجہ سے وہ بچی نہ سو سکتی تھی، نہ پڑھ سکتی تھی، بولنے میں دشواری تھی، چلنے میں دشواری تھی وغیرہ. 72 گھنٹے میں اللہ نے کرم کر دیا کہ بچی نے یہ میسیج بھیجا ہے جو آپ کے سامنے. اگر کسی بھی بچی کا کوئی ایسا مسئلہ ہو، آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہیں. شفا من جانب اللہ ہے، کوشش ہم کریں گے، برکت اللہ کی ذات میں ڈالنی ہے، اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کے پاک ناموں سے، محمد و آل محمد کے پاک وسیلوں سے. آج کی حد تک یہ ایک برکت اسم اعظم کی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. ایک اور برکت اسم اعظم کی ایک خاتون نے کراچی سے میسیج بھی کیا ہے، کال بھی کی ہے. وہ خاتون کہتی ہیں کہ ان کی دونوں بچیاں عجیب بیماری میں مبتلا تھیں کہ وہ سو نہیں سکتی تھیں، چھوٹی بچیاں ہیں، اور عجیب قسم کا بخار ہفتوں سے باوجود دوائی لینے کے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. مجھ سے ان کی ماں نے بات کی، بچیوں کی ماں نے، میں نے اس کو ایک وظیفہ بتایا جو آپ کو بھی بتا رہا ہوں، دعائے نور. اگر آپ دعائے نور کبیر جو بی بی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام سے منقول ہے، ایک مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں، اور بچیوں کو یا بچوں کو پلائیں، اللہ کریم ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. یہ دو برکات، ایک کراچی سے اور ایک یہیں سے کسی دور کے شہر سے، آپ تک ہم نے پہنچا دی. ایک اور برکت کا جو ذکر کرنا میں ضروری سمجھوں گا، وہ یہ ہے کہ ایک صاحب کافی ایجڈ ہے، ڈاکٹروں نے انہیں جواب دے دیا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ان کے لیے وظیفہ پڑھا اور ان کے گھر والوں سے کہا، وظیفہ سجیسٹ کیا کہ وہ پڑھیں. اللہ نے ان بزرگوار کو بھی شفا عطا فرما دی ہے. ایک اور بات عرض کر دیتے ہیں، پھر ہم کالز لیں گے. 718-675-6987 پہ آپ کال کر کے کوئی وظیفہ پوچھنا چاہیں، کوئی کامنٹ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. ایک اور پیغام ہے، ایک محترمہ نے آج ہی پیغام کیا ہے، تھوڑی دیر پہلے. ان کے ہسبینڈ ملک چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے، اور آلموسٹ کئی مہینے گزر گئے تھے. انہوں نے ہم سے ذکر کیا، میں نے ان کو کچھ وظائف بتائے، انہوں نے تھوڑے سے پیسے یتیموں کو بھی بھیجے، اور یتیموں نے بھی ان کے لیے پڑھائی کی، بیوگان نے بھی. الحمدللہ ان کے ہسبینڈ نے رابطہ کیا ان سے، اور یہ بڑی خوش ہیں. انہوں نے بہت طویل میسیج
मुझे भेजा है आज ही, जो जज़ाकल्लाह से शुरू होता है और टू प्लान अ फ्यूचर विद हिम पे ख़त्म होता है। नाज़रीन नाज़रात, ये चंद एक मैसेजेस थे, चंद एक बरक़ात थी इसमें आज़म की, जो अल्लाह के फजल करम से देखने में आई। एक पांचवी बरकत और अर्ज कर दे, वो ये है कि एक साहब बहुत अरसे से नशे के मूजी मरज में मुब्तला हो गए थे। उनका हमने इलाज किया है अल्लाह के फजल करम से। कल हमारे ऑफिस में आके उन्होंने बताया कि वो 100% ठीक हो गए। अगर किसी का कोई बच्चा नशे के मरज में मुब्तला हो, शराब खार हो, असीर जुल्फ हो गया हो, बेनमाज हो गया हो, नहाता ना हो, डिप्रेशन का शिकार हो, या किसी की बच्ची या किसी का मियाँ या किसी की बीवी, तो हमसे रब्ता करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आपके प्यारों के लिए ऐसे वज़ाइफ सजेस्ट करेंगे कि वो ठीक हो जाएंगे। कोशिश करें कि आप खुद इन वज़ाइफ को पढ़ें, और अगर आप ना पढ़ सकें तो फिर कुछ अहल खैर हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में। आज ही हिंदुस्तान से एक मौलाना साहब का वाइबर पे मैसेज आया है कि वो भी पढ़ने के लिए तैयार है, तो उनसे हम पढ़वा देंगे आपके लिए। थोड़ा बहुत आपको हदिया इरसाल करना होगा, और अगर क्रिटिकल केस हो तो फिर हम पढ़ने को तैयार हैं। जैसे किसी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, या जिसका इमिग्रेशन बिल्कुल इम्पॉसिबल हो, अल्लाह के फजल करम से हम उनके लिए पढ़ाई करेंगे और काम हो जाएगा। अगर आप कॉल करना चाहें तो हमारा नंबर है 718-675-6987। ताखीर की माजरत चाहते हैं कि आज का प्रोग्राम ताखीर से शुरू हुआ। एक कॉल ले लेते हैं, फिर 47वां प्रोग्राम बरक़ात इस्म आज़म का जारी व सारी रहेगा। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम सलाम। गुर्दे में पथरी हो? जी हाँ, शुक्रिया हाजी साहब। गुर्दे में अगर पथरी हो तो इसका इलाज मेरे पास मौजूद है, मैं पानी दम करके देता हूँ। ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, मुझसे रब्ता कर लें। गुर्दे में पथरी का इलाज मौजूद है, इवन सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, क्या हाल है मौलाना साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ये आज प्रोग्राम थोड़ा लेट हो गया। जी मैं माज़रत चाहता हूँ, हमारी कुछ टीम के ढीलेपन की वजह से और कुछ तकनीकी परेशानियों की वजह से। अल्लाह ताला हिदायत फरमाए हमारे इनको बच्चों को, ये ज़रा टाइम पे शुरू करें। वैसे तो मैं आज गिर गया हूँ बड़ा शदीद, और मुझे 4 जगह बड़ी सख्त चोटें आई हैं। मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए था, मगर मैं न्यू जर्सी के ऑफिस से सीधा गाड़ी चला के पहुँचा हूँ कि वादे खिलाफी ना हो। अभी हो सकता है इस प्रोग्राम के बाद मुझे जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हो सकता है हॉस्पिटल जाना पड़े, क्योंकि 4 जगह सख्त चोटें आई हैं। मगर मैं उसके बावजूद आ गया कि कहीं मैं वादे खिलाफी ना हो, टाइम पे मैं प्रोग्राम शुरू कर दूँ। अल्लाह आप रहम करे और दुआ फरमाइएगा। जी मैं ये मुझे ये पूछना है कि कभी ऐसा होता है कि भी आपको कुछ ऐसी फीलिंग हो जाए जिसमें आपको पता लग जाता है कि कुछ अच्छा या बुरा होने वाला है, तो इसके बारे में आप बताएं कि कभी तो घबराहट बड़ी होती है और अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है या क्या, क्योंकि मैंने बहुत दफा ये बात आजमाई है। ठीक है, तो इसके बारे में आप बताएं कि अगर ये कोई दुआ है या कुछ है कि ये क्या है इसकी ठीक है। जो भी है।
بہت شکریہ. آواز کرتی رہے, میں ابھی عرض کرتا ہوں. بہن نے ہم سے سوال کیا ہے کہ بعض اوقات نیند میں, خواب میں کچھ دیکھا جاتا ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور بعد میں وہ بعض اوقات صحیح بھی ثابت ہو جاتے ہیں. تو اس مقصد کے لیے کہ کوئی ڈراؤنا خواب نہ آئے, یا اگر خدا نخواستہ کوئی تکلیف آنے والی ہے تو وہ تکلیف راحت میں بدل جائے, وہ تکلیف ٹل جائے, میں ابھی وظیفہ پیش کروں گا. کال ڈراپ ہو گئی ہے, دوبارہ کال کر لیں 718-675-6987 پہ. ابھی میں ایک وظیفہ بیان کروں گا کہ جس سے آئندہ ہونے والی جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی, بلکہ اس عمل کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم رویا میں خواب میں نظر بھی آتے ہیں. یہ مجرب ہے. ایک کال لے لوں, کال بار بار ڈراپ ہو رہی ہے, ذرا دوبارہ کال فرما دیں. یہ میں نے کتاب کرامات درود کے صفحہ نمبر 432 پر حضور اکرم کا خاص درود لکھا ہے. یہ درود ایک دفعہ پڑھ لیں, اللہ کے فضل و کرم سے ایسا ہو جائے گا کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی برا ہونے والا ہے وہ بھی اچھا ہو جائے گا اور حضور پاک خواب میں ملیں گے. ایک کال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب تسلیم زمان بات کر رہا ہوں. کیسے مزاج ہیں؟ جی دعائیں, چوٹیں تو زیادہ نہیں گئی؟ یعنی چوٹیں آئی ہیں مگر آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ خیریت ہو جائے گی. تھوڑی سی دوائی لے لی تھی, لے کے میں بیٹھا ہوں کیونکہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہوں, تو اب اس کے بعد انشاءاللہ معالجہ ہو جائے گا. کوئی بات نہیں. آپ کی یہ سن کے بڑی پریشانی, آپ ہم سب کی جو ہے دعاؤں میں شامل ہیں ہر وقت. مہربانی. اللہ آپ کا پروگرام اسم اعظم بہت پاپولر ہے, بہت اچھا جا رہا ہے. اور آپ سے سوال یہ پوچھنا ہے کہ ایک دعا بتائیں, اسم اعظم بتائیں جس کی وجہ سے جو گھر پہ جو لوگوں کی بری نظر ہوتی ہے یا حاسدوں کی وشنت کی, اس سے بچ سکے. جی ٹھیک ہے. اور جاب کے لیے کوئی آپ اسم اعظم بتائیں. ٹھیک ہے, ابھی عرض کرتا ہوں. واج فرماتے رہیں, اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے, آپ کے اہل خانہ کو, بچوں کو, بچیوں کو. خدا حافظ. تسلیم زمان صاحب نے ہمیں کال کی ہے ٹورنٹو سے, اور انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک تو نظر بد کے لیے, تو نظر بد کے لیے نوٹ کر لیں سورہ نون والقلم کی آخری 2 آیتیں, یہ مجرب ہیں نظر بد کے لیے, نظر بد کے دفعیہ کے لیے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. یہ 2 آیتیں ہیں. ان 2 آیتوں کو لکھ کر گھر پہ لٹکا دیں, اللہ کے فضل و کرم سے گھر نظر بد سے محفوظ رہے گا. ایک کال اور لے لیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب. علیکم السلام. جی سر دعا ہے, آپ فرمائیں. میں منیر کر رہا ہوں وکیل صاحب کے وساطت سے. جی جی جی. کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہے؟ تو ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے امیگریشن میں کیس کیے ہوا ہے, 6 مہینے ہو گئے ہیں. تو ابھی پتہ کیا ہے, بعد میں انہوں نے ساتھ ابھی پھر وہ پینڈنگ ہے, انہوں نے بتایا اٹارنی نے کہ مئی جون تک مے بھی, وہ بھی مے بھی, یعنی تو میں
पाकिस्तान में मार्च में जी मैं तो उन्होंने कहा है कि भाई मेरे मुकाबले करें, लेकिन मैं कि मुझे को बताएं या कोई दुआ करें कि जब पहले जल्दी मुकाम हो जाए ताकि मैं पाकिस्तान जाऊं, बच्चों की शादी में शमूलियत कर सकूं। इस सिलसिले में मैं आज मेहरबानी होगी। अर्ज करूंगा, बिल्कुल आज मैं, बल्कि यही मैं आज तमाम हजरात व ख़वातीन कागज़ कलम ले लें और नोट कर लें जिनके इमिग्रेशन पेंडिंग है, उनको मैं आज 10 अमल बता रहा हूं। इंशाअल्लाह ये 10 अमल उनके पेंडिंग इमिग्रेशन को किनारे पे लगा देंगे, नतीजा खेज, मुस्बत नतीजा खेज साबित होंगे। नोट कीजिए, पहले मैं 10 अमल रोज़गार के लिए, बच्चों के रिश्तों के लिए, बच्चियों के रिश्तों के लिए बयान कर चुका हूं और आज मैं बयान कर रहा हूं, बेशक नोट कर लें। पहला अमल 40 दिन में ये सारे अमल करने हैं या करवाने हैं। 40 दिन के अंदर गोया 2500 मरतबा इन चीज़ों को पढ़ना होगा, जो 10 चीज़ें मैं बता रहा हूं। नंबर 1, ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतुल इखलास को 2500 मरतबा डेली 40 दिन तक पढ़ना या पढ़ाना होगा। नंबर 2, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 2500 मरतबा डेली पढ़ना या पढ़ाना होगा। नंबर 3, नाद अली शरीफ 2500 मरतबा डेली पढ़ना होगा या पढ़ाना होगा। नंबर 4, आयतुल कुर्सी 2500 मरतबा पढ़नी होगी या पढ़ानी होगी। नंबर 5, आयत नंबर 111 सूरह ताहा पहला हिस्सा 2500 मरतबा डेली पढ़ना होगा या पढ़ाना होगा। नंबर 6, सूरह नमल की आयत नंबर 62 पहला पोर्शन, अम्मा युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू तक। नंबर 5, वअनतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम तक। नंबर 7, कलिमा यूनुस आय करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, ये 2500 मरतबा डेली खुद पढ़ें या पढ़ाएं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। नंबर 8, व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, मैं अपने अम्र को अल्लाह की तरफ तफवीज़ कर रहा हूं, भेज रहा हूं। नंबर 9, या अल्लाह हो 2500 मरतबा। और नंबर 10, दुरूद 2500 मरतबा डेली 40 दिन तक। ये वो अमल है, इंशाअल्लाह करें या करवाएं, घर वाले मिलके कर लें, दोस्त मिलके कर लें, या कुछ गरीबों से करवा लें, पाकिस्तान से हमारे ज़रिए भी करवा सकते हैं। हम भी ये खिदमत करने को तैयार हैं। अल्लाह के फजल करम से जिसका इमिग्रेशन पेंडिंग है वो इमिग्रेशन हो जाएगा। मलिक मुनीर साहब ने हमें कॉल की थी और उन्होंने बताया कि उनका इमिग्रेशन पेंडिंग है और बच्चे परेशान हैं, बच्चों की शादियां, और वो बच्चों की शादियों में शिरकत करना चाहते हैं। अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात को हल फरमाए और जिनकी बेगमात पाकिस्तान में हैं, अल्लाह करे वो भी जल्दी यहाँ आ जाए। जिनमें हमारे हाफिज़ मुबशर नज़ीर साहब के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी अहलिया को भी इनके साथ यूनाइट कर दे। और भी जिन जिन मोमिनीन ने, मोमिनात ने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं, जिनके प्यारे उनसे दूर हैं, अल्लाह करीम उनको उनके प्यारों से मिलवा दे। तो ये 10 अमल मैंने आज बयान किए हैं, नोट कर लीजिए। फरवरी 3 को 2015 अलमहदी टीवी के प्रोग्राम नंबर 47 में इंशाल्लाह मैं इस दफ़ा जो कालम लिखूँगा उसमें ये इमिग्रेशन वाला नुस्खा मैं लिख दूँगा। यह मुजर्रब नुस्खा है, आप 40 दिन आजमाएं। जिनके प्यारे उनसे दूर हैं, 40 दिन के अंदर उनको नवीद मुसर्रत मिल जाएगी। कमो बेश 40 से 50 लोग ऐसे हैं सन 1990 से लेकर आज तक जिन्होंने ये आजमाया है और उनको अल्लाह की ज़ात ने अपने प्यारों के साथ मिला दिया।
मोहतरम नाज़रीन और हज़रात, ये हमारा प्रोग्राम बरक़ात इस्म आज़म का 47वां प्रोग्राम जारी सारी है। तस्लीम ज़मान साहब ने रोज़गार के बारे में पूछा था, तो अगरचे मैं रोज़गार के बारे में आमाल वज़ाइफ पहले बताता रहा हूँ, मैं अभी एक और अमल आज अर्ज़ करता हूँ और ये अमल आप नोट कर लें। वो अमल है या रज़्ज़ाक़ो, खुला पढ़ते रहे। वैसे मेरी किताब वज़ाइफ़ रिज़्क़ तैयार है बिहम्दिल्लाह 786 सफ़ात की। अगर कोई बिरादर मोमिन या बहन मोमिना छपवाना चाहे तो वो अपने मरहूमीन के लिए छपवा सकते हैं। आज तक जितने ऑर्डर हमें किताबों के आए थे न्यू जर्सी के ऑफिस से, आज की हद तक तमाम किताबें इरसाल कर दी गई। अगर किसी को किताब या जंतरी न मिले तो हमसे फौरन राबिता फरमा लें। आप किसी भी अपने मसले के लिए, परेशानी के लिए कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर कंट्रोल रूम वाले अभी प्रिंट कर देंगे। मेरे नंबर पे आप, प्राइवेट नंबर पे भी, मेरे सेल नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। मेरा सेल नंबर है 856-266-5786, 856-266-5786, 718-675-6987 हमारे अलमहदी सेंटर का नंबर है, जो हम स्टूडियो के लिए भी यूज़ करते हैं। वहाँ आप आगा सजाद अली शाह जाफरी को भी मेरे लिए कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं। कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो, अलैकुम सलाम। अलैकुम सलाम जी, कैसे हैं? अलैकुम सलाम। कौन बोल रही? मैं हुमैरा बात कर रही हूँ, मैं गंज से। कैसी है हुमैरा? ठीक है हुमैरा, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी। जी फरमाइए। कॉल ड्रॉप हो गई है। हुमैरा ने हमें कॉल की है मैरीलैंड से। दोबारा कॉल कर लें, अगर वॉच कर रही हैं तो दोबारा कॉल कर। सलाम अलैकुम। हेलो, अलैकुम सलाम। अलैकुम मैं हुमैरा बात कर रही हूँ, मैं जी, कैसी हैं? खैरियत से? डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? दुआएं दुआएं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, अभी पता चला था आपको काफी चोटें लगी। अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए। आपकी दुआओं से इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगा। मैंने आपका हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है। मुझे जो आपने पढ़ने के लिए दिया उससे मुझे थोड़ा बहुत फर्क है। तो दूसरा ये बताना था कि हूर के लिए दुआ करें। वो 3 दिन से बहुत जिद कर रही है और रोती है बहुत। तो मुझे कोई इसमें आज़म बताएं ताकि उस बच्ची को सुकून मिले। बहुत शुक्रिया, आप बात करते रहे। अभी अर्ज़ करते हैं, हुमैरा सईद ने कॉल की है और वो कहती हैं कि उनको आराम है। वजीफ़ा उनको बताया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ रही हैं, उनको आराम है। और बेटी के लिए उन्होंने वजीफ़ा पूछा है कि बच्ची की ग्रोथ हो, और 3 दिन से वो बच्ची परेशान है। तो मैं हूर के लिए एक वजीफ़ा, जिसे मैंने अपनी किताब सफ़ा नंबर 141 के करामात दुरूद पे, करामात दुरूद सफ़ा नंबर 141 पर मैंने लिखा है कि एक दुरूद ऐसा है जिसका सवाब 72 रकात के बराबर है। वो आपने 72 रकत नमाज पढ़ ली। वो ये दुरूद है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। इस दुरूद को पढ़ें, अल्लाह ताला बच्ची को शिफाए कामिलो आजिल अता फरमाएगा। तस्लीम ज़मान साहब ने जो रिज़्क़ के बारे में पूछा था, घर में दाखिल हों तो सलाम करें, खा घर में कोई मौजूद हो या ना हो, और घर में ऊंची आवाज़ से अजान कहें तो अल्लाह ताला रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा फरमा देगा।
नाज़रीन हज़रात, आप वाच कर रहे हैं प्रोग्राम बरक़ात इस्म आज़म नंबर 47। बेहमदुलिल्लाह ये प्रोग्राम हमारा बड़ा ही दिलचस्प और सूदमंद वाक़ हुआ है। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ भाई बहनों का जो वाच कर रहे हैं, जो इनकरेज कर रहे हैं। दूसरों को भी बताएं, क्लिप्स भेजें। एक कॉल ले लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह 47वां प्रोग्राम बरक़ात इस्म आज़म का जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं हदी सारा बोल रही हूँ और मैंने सुना है कि आप आज गिर गए थे। जी जी जी, और मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू बेटी। माशाल्लाह हादिया ज़हरा ने कॉल की है। और मेरा एक सवाल भी है जी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी से बचने के लिए क्या वजीफा है? शाबाश, बहुत अच्छे। वाच करती रहे, मैं भी अर्ज़ करूँगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका, आपने दुआ की। तमाम से मैं दुआ का तालिब हूँ, बहुत मेहरबानी। हादिया ज़हरा ने कॉल की है। पहले तो वो मेरे गिरने के बारे में बहुत फ़िक्रमंद थी, उन्होंने दुआ की कि अल्लाह शिफा दे। आप सबसे दुआओं का तालिब हूँ। और फिर उन्होंने एक बात पूछी है कि ये बताएं कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी से बचने का बेहतरीन फार्मूला। इस सिलसिले में मैं एक फार्मूला तो बयान करूँगा जिसे मौलाना रज़ी जाफ़र ने, मेरे दोस्त हैं मौलाना रज़ी जाफ़र नकवी, उन्होंने मुझे बताया है कि वो बग़ैर असले के कराची में चलते हैं, बरसती गोलियों में चलते हैं, और उनके पास से कई दफ़ा गोली गुजरी, उन्हें गोली नहीं लगी। पहले तो इंडिविजुअल तौर पर एक वजीफ़ा मैं सब के लिए बयान कर रहा हूँ कि नमाज इमाम ज़माना रात के वक्त 100 मरतबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वाली, ये गोली, गाली, बम, खुदसोज हमले, हसद, निखवत, तकब्बुर, आबरू रेजी, इल्ज़ाम तराशी वगैरह से बचा देती। ये बहुत ज़बरदस्त मुजर्रब नुस्खा है। दूसरा नुस्खा जो मैंने खुद आजमाया है, मुझे भी कई मरतबा परस्त मारे गए, गोलियां मारी गई। यतीम परवरी, अगर आप यतीम परवरी करें, चलते फिरते दुरूद पढ़ते रहें, अल्लाह ताला गोली आप तक नहीं लाएगा। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। This is Ali, and I have a question. I have relatives in Pakistan whose house, their sickness doesn't go away, and they have a son, but he doesn't get a job, and there's like a lot of problems for them. So is there any problem for their solution? Yes. Ali is calling us and he is asking, there are some of his relatives in Pakistan who are sick, they do not get well, and they do not get sustenance. So let me tell you, all of you, if somebody is sick, just recite 12,000 times, Amma yujibul muztarra idha da'ahu wa yakshifu su. Either himself, herself, or some people facing toward Al-Kaaba with wudu, inshallah Allah will recover. For the sustenance, I have very important, effective wazifa. Let me tell you, whoever recited 100,000 times Bismillah Rahman Rahim got job, or his or her business became very popular, very, very good. माशाल्लाह आप वाच कर रहे हैं बरक़ात इस्म आज़म का प्रोग्राम नंबर 47। अगर आप कॉल करना चाहें 718-675-6987 पर कॉल कर सकते हैं। चंद मिनट और मैं आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। आज ज़रा मुश्किल हो रहा है, तो नहजुल बलागा का दर्स आज आपकी खिदमत में पेश नहीं हो सकेगा, क्योंकि गिरने की वजह से ज़रा दर्द में इजाफा हो रहा है। सिर्फ मैं वादा पूरा करने के लिए आपकी खिदमत में पहुंच गया। अल्लाह ताला मुझे भी शिफा दे, और जो भी बर्फ़ से गिरे हैं तमाम
भाई बहनों को शिफा अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे लैंडलॉर्ड्स को, जो ऑफिसेस के लैंडलॉर्ड्स हैं, हिदायत करे। जो किराया तो वक्त से पहले ले लेते हैं मगर उनको नमक डालने की फुर्सत नहीं होती। मैं ऑफिस से इसलिए गिरा हूं कि वहाँ नमक नहीं डाला गया था। मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, आज का प्रोग्राम ऑलमोस्ट 25 मिनट और जारी रहेगा। आज भरपूर प्रोग्राम करूंगा इंशाल्लाह। अगर कल तबीयत ने साथ दिया तो 7 बजे दोबारा हाजिर होऊंगा, नहीं तो 7 बजे रिकॉर्डेड प्रोग्राम बड़े ही इम्पोर्टेंट लगेंगे। 7 से 9 बजे हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइव प्रोग्राम्स इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश किए जाए। कुछ मैं बहन भाइयों से ये भी कहूँगा कि अलमहदी टीवी के साथ ज़रा ताउन करें ताकि हम अपने ड्यूज दे सकें। हमारा $30,000 का कर्ज बाकी है और अभी हमने लास्ट मंथ का, जनवरी का, जादू वालों का जो बिल देना होता है 500 दिया है और 2,000 अभी बाकी है। कोई मोमिन, कोई मोमिना आज मेहरबानी फरमा दें कि एक $2,000 जादू वालों का पे करने के लिए कार्ड पे आज दे दें, चाहे तो खुम्स दे दें, चाहे तो सदका जारिया दें। अल्लाह करीम आप सबको जिंदा हो सलामत रखे। माशाल्लाह आप वाच कर रहे हैं 47वां प्रोग्राम बरकात इसमें आज़म का। एक कॉल और ले लेते हैं। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर, कैसे मिजाज? आपका प्रोग्राम मैंने भी मिडिल में लगाया था, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि आप से स्लिप होके क्या तबीयत ठीक ठाक है ना? जी आपकी दुआ से ठीक है। अच्छा। तकरीबन कोई मगरिब से आधा घंटा पहले गिरे थे मगर मगरिब भी पड़ी है, मगरिब इशा खड़े होकर पड़ी आपकी दुआ से इंशाल्लाह। तो आपको महफूज रखे और माशाल्लाह मेहरबानी। आपका जो प्रोग्राम है ये बड़ी जरूरत है वक्त की। और साथ साथ आप ये भी प्लीज बता दी, वैसे तो आप बताते हैं कि ये रिपीट दिन में किस वक्त कितने वक्त कितनी दफा होता है? इंशाल्लाह ज़रूर मैं भी अर्ज़ करता हूँ। शुक्रिया अनवार जाफरी साहब ने हमें कॉल फरमाई है वर्जीनिया से। एक कॉल और ले लेते हैं। सलाम अलैकुम। हेलो, सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, ये मौलाना साहब जी मैं बोल रहा हूँ बहन, जी, बोल रहा हूँ हुक्म फरमाए। मौलाना साहब से बात कर रहे जी मैं बात कर रहा हूँ। हैं? जी मुझे मेरी औलाद नहीं है, 10 साल हो गए हैं। बहन औलाद के लिए आप नोट कर लें, हदीस से सिलसिलतुज़ ज़हब नोट कर लीजिए। जी तमाम लोग नोट कर लें हदीस से। आप टीवी वाच कर रही हैं? समझ, जी मैं कर रही हूँ। हाँ ठीक है, आप टीवी देखें, मैं बताता हूँ। सिस्टर ने पूछा है औलाद के लिए। जिनकी औलाद नहीं वो प्लीज नोट कर लें, कागज कलम पकड़ लें। जब भी बरकात इसमें आज़म का प्रोग्राम देखें तो एक नोटबुक बना लें इसमें आज़म की। मैंने भी ये जो किताब है इसको जूम आउट जूम इन कर लें, ये मैंने लिखी थी। ये सबसे पहली मेरी किताब है और ये बड़ी मार्कतुल आरा किताब है। ये इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एडिशन प्रिंट हो के तकसीम हो चुकी है। ये बेसिकली मेरे नोट्स थे। जब मेरे उस्ताद मुझे पढ़ाते थे तो मैं नोट्स बनाता था, ये नोट्स से किताब बन गई। उसके बाद फिर मैंने खुद नोट्स बनाने शुरू किए। तो ये तोहफ़ा दरवेश, ये अमेरिका का तोहफ़ा है बेसिकली। ये जो बरकात इसमें आज़म है ये ईरान और पाकिस्तान का तोहफ़ा है। ये अमेरिका का तोहफ़ा है खालिस। अमेरिका में मुझ पर कई साल बड़े कड़े गुजरे। इमिग्रेशन में मुश्किलात में रहा, बड़ी परेशानियां थी। 7-8 साल इमिग्रेशन में परेशानियों से धक्के खाए हैं। तो उस दौरान जो वज़ाइफ किए वो सब मैं जमा करता गया। कुछ मैं शाम से ले आया, कुछ इराक से, कुछ ईरान की ज़ियारत पे गया तो वहाँ से ले आया, कुछ तुर्की से, कुछ उर्दन से ले आया, कुछ सऊदी अरब से। ये मैंने पूरी ज़िंदगी जो फिरता रहा हूँ 90 से लेकर और आलमोस्ट सन 2007 तक अल ज़ाहिर
मैं वो मखतूतात लिख लेता था, नोट्स बना लेता था 2009 तक। ये 2009 तक मैंने ट्रेन में, प्लेन में, टांगों में, रेड़ों पर बैठकर, बसेज में, एयरपोर्ट्स पर, घर में, सब जो मखतूतात लिखे थे उनको मैंने 30 रातों में न्यू जर्सी में जाग कर इसको तदवीन किया। ये मेरी 30 रातों की मेहनत है, यानी सारी जिंदगी की, और फिर 30 रातों में मैंने कंपाइल किया। तो आप नोट्स बना लें। ये मेरी किताब है कशकौल संद्राल, ये भी मेरे नोट्स हैं। मेरी आदत है, मुझे जो भी कोई अच्छी चीज़ मिलती है फ़ौरन मैं उसे नोट कर लेता हूँ। मुझे कुछ आमिल मिले जिन्होंने मुझे कहा कि हम लोग कुछ अपने वज़ाइफ बेचना चाहते हैं, तो उनसे मैंने वज़ाइफ बड़े महंगे ख़रीद लिए। तो बिहम्दुलिल्लाह ये भी बड़ी मारकतुल आरा किताब निकल आई। फिर दुरूद पर तो मेरे ख्याल में उर्दू की ज़मीन में आज तक इस फ़कीर की किताब से बेहतर कोई किताब लिखी नहीं गई। ये किताब मेरी है, करामात दुरूद। मेरा ये ऐलान है, इससे बेहतर किताब आज तक उर्दू में दुरूद के बारे में नहीं लिखी गई। ये 458 सफ़ात की है। अब इसका अगला एडिशन आएगा तो 786 सफ़ात का होगा, क्योंकि कुछ और भी दुरूद के सीगे, मुजर्रब वज़ाइफ मिल गए। तो आप नोट कर लें। ये मेरी सिस्टर ने जो कहा है, जिनकी औलाद नहीं है वो हदीस से सिलसिलतुज़ ज़हब ज़अफ़रान के साथ चीनी की प्लेट पर या ऐसी पेपर प्लेट पर जिस पर स्याही फैलती ना हो, लिख ले और उसको धो ले। दोनों मियाँ बीवी दाएं हाथ से एक एक घूंट पानी डाल के प्लेट में उंगलियों से, 5 उंगलियों से रब करें बावुजू होकर। इंशाअल्लाहुल अजीज फरीज़ा ज़ौजियत के अदा करने के बाद अल्लाह करीम उनको बिला फासला खुशी नसीब फरमाएगा। वो बच्चे जो इस वजीफे के जरिए, यानी जिनके पेरेंट्स के लिए मैंने हदीस सिलसिलतुज़ ज़हब लिखी थी, आज माशाल्लाह वो बच्चे 30-35 साल के हो गए। बल्कि अभी अभी एक बच्चा मुझे मिला था, मैं बड़ा हैरान हुआ। उस बच्चे ने मुझसे पूछा कि आप मुझे जानते हैं, मैं कौन हूँ? मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा कि मैं आपकी दुआ से पैदा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहन भाई, वो कपल जिनको डॉक्टरों ने कहा था कि ज़मीन आसमान पे चले जाए, आसमान ज़मीन पे आ जाए, आपकी औलाद नहीं हो सकती, ये 3-4 सालों के अंदर अंदर उनकी भी औलाद हो गई। अलबत्ता याद रखिए, मेरे अपने कई अजीज़ों की औलाद नहीं है, ताकि ये ना समझिए कि 100% है। 100% नहीं, आप यूँ समझिए कि 99% मैंने 100 को दिया है ये नुस्खा, तो 99 को औलाद हो गई। अगर आप चाहें मुझसे लिखवाना तो मुझसे रब्ता कर ले। मैं आपको ये हदीस सिलसिलतुज़ ज़हब जो इमाम अली रिज़ा सलावतुल्लाह व सलामुहु अलैह ने मर्व में पढ़ी थी जब आप उतरे थे अपनी सवारी से, उस हदीस सिलसिलतुज़ ज़हब और सिलसिलतुज़ ज़हब को मिलाकर मैं लिखता हूँ। मैंने अपनी किताबों में दर्ज किया है। ये इस वक्त 4 किताबें अवेलेबल हैं, करामात दुरूद, कशकौल संद्राल, दरस कुरान, बरक़ात इस्म आज़म और 5वीं जंतरी अल-महदी जंतरी। $100 इरसाल कर दें, आपकी खिदमत में ये किताबें भेजी जाएंगी। जिन जिन भाई बहनों के $100 वसूल हुए थे, आज की हद तक न्यू जर्सी से उनको तमाम किताबें इरसाल की जा चुकी है। हमारे प्रोग्राम का वक्त ऑलमोस्ट
15 मिनट और बाकी है। अगर आप कॉल करना चाहें कॉल कर लें। कुछ लोग मेरे पर्सनल फ़ोन पे मैसेजेस भेज रहे हैं, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जो इस प्रोग्राम को भी लाइक कर रहे हैं और वो मेरे लिए दुआ भी कर रहे हैं। आपसे मैं दुआओं का तालिब हूँ। अल्लाह तमाम भाई बहनों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो बेशक मैसेज कर दें, ईमेल भेज दें, वाइबर पे भेज दें, SMS कर दें, व्हाट्सएप पे भेज दें। जैसे तस्लीम जमान साहब ने अभी अभी मैसेज भी भेजा है, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द बुक्स, आई हैव सेंट माई एड्रेस इन माई ईमेल। तो जवाब ये है कि जितने भाई बहन कनाडा में रहते हैं उनको डाक बहुत देर से मिलती है। ये हाफिज़ मुबश्शिर नज़ीर साहब ने भेज दी थी किताबें, इंशाअल्लाह वो आपको मिल जाएंगी, क्योंकि 3 हफ्ते कम से कम लग रहे हैं, 3 से 4 हफ्ते कनाडा वालों को। इंशाअल्लाह किताबें आपको पहुंच जाएंगी। अगर हम खुद आ रहे हों कभी और आप फरमाएं तो वो फ़ौरन आ जाती हैं किताबें। अब क्योंकि उधर आने का जल्दी जल्दी इरादा नहीं है, इसलिए हम कनाडा वालों को डाक में ही इरसाल करेंगे। फ्लोरिडा से भी एक सिस्टर ने बड़ा मोहब्बत भरा मैसेज भेजा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। शुक्रिया बहन, आपने तबीयत का भी पूछा है और प्रोग्राम को भी अप्रिशिएट किया है। बाज़ भाई बहनें अपना नाम नहीं बताना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं, ना हमने खुदा न खास्ता कोई नुमाइश करनी होती है, ना ही हमारा हदफ किसी के नामों को पब्लिक करना है। ये कॉल्स इसलिए हम लेते हैं कि थोड़ी इनकरेजमेंट हो, पता चले कि लोगों के काम बन रहे हैं। ये मैसेज आज ही आया है। मुस्वी साहब ने कहा है कि मेरा नाम ले ले। ये मैनचेस्टर से मुस्वी साहब ने कॉल की है। अल्हम्दुलिल्लाह इनका एक काम था जो इन्होंने मुहर्रम में मेरे ज़िम्मे लगाया था, अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम हो गया है। एक और मैसेज भी मैनचेस्टर ही से एक सिस्टर का आया है, लंदन से, लंदन, कि उनकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है और वो खुश है। एक और बच्ची ने मैसेज भेजा है कि थैंक यू सो मच फॉर प्रेइंग फॉर मी, मे अल्लाह गिव यू गुड हेल्थ। अभी अभी मैसेजेस आए। करबला 786 से भी एक मैसेज आ रहा है। एक और मैसेज आया है सिस्टर का। उन्होंने कहा है कि थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग अस रिसीट ऑफ डोनेशन। उन्होंने डोनेशन भेजा होगा। एंड ब्यूटीफुल बुक्स, उनको किताबें मिली हैं। थैंक्स अगेन टुडे, समवन कॉल फॉर अप्रिसिएशन। ये आपको भी अगर किताबें चाहिए हों, माशाल्लाह इन किताबों ने वाकई एक तहलका मचा दिया है। 4 किताबों ने, 5वीं अवेलेबल नहीं है, तोहफे दरवेश तैयार हो गई है, छप रही है इंशाल्लाह। थोड़ी सी उसकी प्रूफ रीडिंग बाकी है, मैं फाइनल उस पर नज़र मारना चाहता हूँ तोहफे दरवेश पे। इंशाल्लाह वो किताब भी आपकी खिदमत में जल्द आ जाएगी। और सखावतुल्लाह भी तैयार है। थोड़ी सी देर मेरी तरफ से है कि मैं तमाम किताब को चाहता हूँ लफ्ज़ लफ्ज़ खुद देखूँ। आज मैं आपके लिए एक दुआ को पेश करना चाहता हूँ और यही आज का गिफ्ट है, और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त ले लूँगा। इस दौरान में अगर आप कॉल करना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। ये दुआ है दुआए हरीक, हारा या काफ। ये दुआ पहली मरतबा अरबी की कुतुब से निकाल कर मैंने अपनी किताब तोहफ़े दरवेश में पेश की, और आयतुल्लाह उज़्मा सैयद मोहम्मद शिराजी ने अपनी किताब मफाती उल जनान जदीद के अंदर
جو عربی میں ہے المنتخب الحسینی نقل فرمائی. میں نے کہیں اور سے نقل کی تھی، البتہ اس کتاب میں بھی ہے. سید ابن طاؤس کی کتب ہے دعا کی، وہ بڑی کمال کی کتب ہے. میں نجف اشرف سے کتابیں بھی لایا تھا اور میں لائبریری میں بیٹھ کر نوٹس بھی بنا کے لے آیا تھا. بی بی زینب کی ایک بہت بڑی لائبریری ہے، اللہ بی بی زینب کے روزے کو آزاد کرے. وہاں پر کئی ہفتے بیٹھ کر میں نے کچھ کتابیں اور رسالے نوٹ کیے، لکھے. یہ ایک وہ دعا ہے کہ جو دعا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد یہ ہے. میں نے اپنے والد امام محمد باقر سے سنا، انہوں نے فرمایا میرے والد علی ابن الحسین مسجد قباء میں تشریف لے گئے اور میں بھی ساتھ تھا تاکہ وہاں جا کر عبادت کریں اور بزرگ انصار کی عیادت کریں جو مریض تھے. اس وقت ایک شخص میرے والد کی خدمت میں آیا اور آ کر میرے والد سے کہا کہ آپ اپنے گھر تشریف لے جائیں کیونکہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی ہے. تو میرے والد نے فرمایا اگر آگ نہیں لگی. وہ شخص جو یہ خبر لایا تھا واپس گیا اور وہ دوبارہ آیا. اس وقت کچھ لوگ اور بھی اس کے ساتھ تھے، کچھ ہمارے خادم گھر کے بھی اس کے ہمراہ تھے. وہ گریہ کر رہے تھے اور میرے والد سے کہتے تھے واقعا آپ کے گھر کو آگ لگ گئی ہے. تو میرے والد نے فرمایا ایسا نہیں ہے، خدا کی قسم میرے گھر کو آگ نہیں لگی، میں اپنے خدا پر تم سے زیادہ اعتماد رکھتا ہوں. پھر معلوم ہوا کہ آپ کے گھر کے چاروں طرف آگ لگ گئی ہے مگر ہمارا گھر محفوظ ہے. اس کے بعد میں نے اپنے والد امام باقر سے پوچھا کہ آپ کے والد امام زین العابدین کا قصہ کیا تھا. تو میرے والد نے فرمایا کہ اے بیٹے یہ وہ چیز ہے جسے ہم نے وراثت میں پایا ہے اور یہ چیز رسول خدا کے علم میں سے ہے اور یہ چیز ہمیں بہت زیادہ محبوب ہے اس دنیا میں، اور جو کچھ اس دنیا سے مال و جواہر و املاک وغیرہ ہے اس سب سے عزیز ہے. جو کچھ لوگوں کو مال ملا ہے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ترین یہ دعا ہے. جنگ کرنے والا اسلحہ وغیرہ اس سے مفضول ہے. یہ وہ راز ہے جسے جبریل رسول خدا پر لے کر نازل ہوئے اور انہوں نے علی کو تعلیم دی اور رسول خدا کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا نے اسے وراثت میں پایا اور ہم نے ان سے حاصل کیا. اور یہ وہ دعا کامل ہے جسے جو شخص بھی اپنے کسی کام کے لیے روزانہ پڑھے گا، کام کرنے سے پہلے پڑھے گا تو خدا 1000 فرشتے کو اس کی حفاظت پر مقرر فرمائے گا اور اسے اس کی جان اور اس کے مال، اہل اولاد اور اس کے گھر، اہل خانہ، بزنس وغیرہ، تجارت، احباب، رشتہ داروں کو اللہ آگ میں جلنے سے، غرق ہونے سے بچائے گا. حتیٰ کہ اگر زہر کسی کو دے دیا گیا، تیزاب پلا دیا گیا ہو تو یہ دعا بچا لے گی. شر شیطان، شر سلطان، اشرار کے شر سے اللہ اس دعا کے عوض امان دے گا. امتحان کا وقت الگ ہے. کربلا میں امتحان کا وقت تھا، معجزے کا وقت نہ تھا. وہاں آل محمد کے گھر کو آگ لگ گئی تھی اور یقیناً دعائے حریق وہاں ساتھ موجود بھی نہیں تھی. یہی مصلحت تھی. دعائے حریق اگر کوئی گاڑی میں رکھے سواری محفوظ رہے گی جلنے سے، ایکسیڈنٹ سے، حادثے سے. جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اسے 100 صدیق کا ثواب ملے گا اور وہ یقیناً جنتی ہے. مجھے میرے باپ نے کہا تھا اسے حفظ کرو اور اس کو ہمیشہ کے لیے مداومت کے ساتھ پڑھتے رہو. صفحہ نمبر 586 سے لے کر 593 تک یہ دعا میں نے اپنی کتاب تحفہ درویش میں تحریر کی ہے. محترم ناظرین و ناظرات، اسی کے ساتھ آج کی حد تک برکات اسم اعظم نمبر 47 اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ
बशर्ते सेहत कल 7 से 9 बजे आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। 24 घंटे अलमादी टीवी के प्रोग्राम वाच करते रहे। और ये प्रोग्राम जो आज आपने मुलाज़ा फरमाया, हाफिज़ मुबश्शिर नज़ीर और हुसैन रज़ा सल्लमहुमा के ज़रिए और मौलाना वसीम अब्बास साहब की एनफोर्समेंट से कल 6 से 7 बजे शाम को दोबारा प्ले किया जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जिन्होंने आज कॉल्स की मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। हाजी मंजूर साहब ने कॉल की, गुर्दे में पथरी के बारे में पूछा, मैं उनके सामने गिरा हूँ, मेरी तबीयत नहीं पूछी। अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे, बल्कि बेचारों ने मुझे ही उठाया खुद। बहुत शदीद चोटें आईं ऑफिस के बाहर न्यू जर्सी में। बहन आबदा हुसैन ने मेहरबानी फरमाई, तबीयत का पूछा। तस्लीम जमान साहब ने तबीयत का पूछा। मलिक मुनीर साहब ने इमिग्रेशन का जिक्र किया। हुमैरा ने तबीयत का पूछा। और इमिग्रेशन के लिए एक बहन ने पूछा। हदिया ज़हरा ने, बच्ची ने मुझसे तबीयत का भी पूछा और पाकिस्तान में दहशतगर्दी से बचने का अमल पूछा। अनवार हैदर जाफरी साहब ने वर्जीनिया से मेहरबानी फरमाई, कॉल की और ये कहा कि टाइम बता दें, तो टाइम बता रहा हूँ। कल 6 बजे इंशाअल्लाह ठीक बरकात इस्म आज़म नंबर 47 प्ले होगा। एक बहन ने औलाद के लिए पूछा था, उनको भी बता दिया गया। और जो भाई बहन आज हमारे साथ शामिल हुए उनके हम बड़े शुक्रगुजार हैं। अल्लाह करीम आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। कुछ लोगों ने SMS भेजे थे, मैसेजेस भेजे थे कराची से, एक और शहर से, वर्जीनिया से वगैरह, उनके भी हम बेहद शुक्रगुजार हैं। अगर आप ज़ियारत पे जाना चाहते हो तो हमारे हसनैन रज़ा काफ़िला ले जा रहे न्यू जर्सी से, आप हमसे रब्ता फरमा सकते हैं। और मौलाना अली हैदर आबदी साहब भी काफ़िला ले जा रहे हैं। दोनों के काफ़िले मार्च और अप्रैल में जा रहे हैं। टोरंटो से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारे हुसैनी भाई काफ़िला ले जाते हैं। सारी तफसीलात हम कल 7 से 9 के प्रोग्राम में आपको दे देंगे। आप वॉच करते रहें। $1 पर डे की मेंबरशिप ज़रूर लें। खुम्स भी हमें दे सकते हैं। हमारा 6000 का खर्चा आलमोस्ट है महीने का। इसमें आप ताउन फरमाएं। 30,000 उधार बाकी है। 50,000 आपकी दुआओं से उतर गया है, इसमें भी ताउन करें। अल्लाह हामी व नासिर हो। अल्लाह आपकी सारी हाजतों को पूरा करे, सेहत व सलामती अता करे, मरहूमीन की मग़फ़िरत हो, रिज़्क़ वसी आए, रिज़्क़ में बरकत आए, औलाद ज़्यादा हक़ में रहे, ख़ात्मा अलल खैर हो, घर आबाद व शाद रहे, हज व ज़ियारत नसीब हों। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफ़िज़।